بات نہیں، یہ ایک ایسی عید ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ خون دینے والے اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کو نہیں چلا، آج دودھ پینے والے مجنو اور کیک کاٹنے والے عاشقوں کو چل گیا ہے، اور میرے پیغمبر کے نام پہ چھریاں پھیرنے والے ان کے لیے جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا دوربین اور خوردبینوں سے۔ قیامت کے دن اعلان ہو گیا نا کہ جنہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جائیں، بڑا دعویٰ پیٹا گیا، اور جناب پتہ چل جائے گا کل قیامت کو جنہوں نے نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہو جائیں گے، مگر جن کے ساتھ ہوں گے وہ میرے محبوب ہوں گے، وہ نبی کے صحابہ ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے، وہ تابعین و تبع تابعین ہوں گے، وہ مفسرین و محدثین ہوں گے، وہ فقہاء و اولیاء ہوں گے۔ حضرات اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ سوالوں کے جواب ذرا دیکھنا، 11 سوال لے کے ادھر ادھر کے ٹوٹ کے بیٹھا تھا، تیرا رائٹ نہیں بنتا تھا یا تیرے یہ ذمہ تھا کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ آئیے ذرا ہمارے سوالوں کو پرکھیے، مقصد نیچا دکھانا نہیں، تیری اصلاح مقصود ہے، سوال کا جواب ملے لائف ٹائم ہے، زندگی میں کبھی ملے تو دیکھنا ضرور، پرکھنا ضرور۔ پہلے نمبر پہ سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی۔ پہلا سوال نوٹ کر، قلب و جگر پہ لکھ، احوال کا پتہ کر، دنیا سے پوچھ، لائبریریوں میں جا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک سارے انبیاء برحق، سب کی ذرا تاریخ ولادت لا کر کے ذرا یہ جشن تو منانا حق سب کا بنتا ہے۔ مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ دوسری چیز، اگر پیغمبر کی ولادت ہے تو ذرا وفات کا پتہ کر، جسے پیدا ہونا ہے کل من علیہ فان، اسے موت بھی آنی ہے۔ تیری ڈکشنری اور تیری ڈائری میں، تیری جنتری میں کل 12 وفات کی تھا، اور تیری عقیدے کی کتابوں میں اور تیری فکر رضا میں پیغمبر کی وفات کا یہ دن تھا۔ مٹایا گیا تو کیوں، ہٹایا گیا تو کیوں؟ ذرا سوال کا جواب تیار رکھنا، میری اس محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ تیسرا سوال، اس عید کا ذرا نمبر بتا کہ نمبر کون سا ہے، اور میں تجھے بتاؤں، تو نے کہا کہ عید جمعہ ہے، میں نے کہا کہ جناب ہے، طریقت بتاؤں گا، شریعت اظہار کرے گی۔ عید الفطر کا نمبر شوال میں ہے، رمضان کے بعد ہے، پھر عید الاضحیٰ کا نمبر 12ویں مہینے میں ہے۔ تو نے جو اسے تیسرے مہینے میں لا کر کے سفر کے بعد ربیع الاول میں دیا، اس کے نمبر کو ذرا کتاب و سنت سے شو کر۔ چوتھا سوال کہ اس عید کا نام کس نے رکھا، وہ پہلا نام رکھنے والا ذرا اپنا کوئی امام، لیڈر، رہبر و رہنما و پیشوا پیش کر، تجھے پتا چل جائے گا۔ پانچواں سوال، اس عید کی ذرا ٹائمنگ بتا۔ چھٹا سوال، اس میں عید میں اذان و اقامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو دلیل، نہیں ہوگی تو کیوں نہیں۔ ساتواں، اس عید کی نماز پڑھی جائے گی تو دلیل، اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وجہ بتا۔ اسی طرح آٹھواں سوال، اس عید میں خطبہ دیا جائے گا تو دلیل، نہیں دیا جائے گا تو کیوں۔ نواں سوال، اس عید میں بعد میں دعا اجتماعی ہوگی کہ نہیں، اگر ہوگی تو دلیل، اگر نہیں ہوگی تو وجہ بتا۔ 10واں سوال، اس عید میں خواتین عید نماز کے لیے نکلیں گی کہ نہیں، اگر نکلیں گی تو دلیل، نہیں نکلیں گی تو وجہ بتا۔ 11واں سوال، عید کی رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بڑھ کے ہے۔ آج ایک نے پوسٹ لگائی، میرے بھائیو یہ رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، جلسہ کی انتظامیہ اگر موجود ہے تو مخاطب ہوں، آپ کا پروگرام اگر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام ہے، 11 ربیع الاول کا نہیں، کیونکہ مغرب سے 12 ربیع الاول شروع ہو چکی۔ ایک صاحب نے اپنے علم کی فضیلت کا اظہار کرا اور کہا کہ جناب آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل، وافقی تیرے اس فتوے کے اوپر قربان نہ جاؤں۔ عجیب فتویٰ ہے کہ جس فتوے کا علم نہ میرے محبوب کو ہوا، نہ جبریل امین کو ہوا، نہ رب کو ہوا، نہ رب کے قرآن کو ہوا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، کہتا ہے وہ گھٹیا اور ہلکی ہے، کیوں؟ وہ اس کے بدلے کی نہیں ہے، اس مقابلے کی نہیں ہے، تب صرف قرآن اترا تھا، اس میں صاحب قرآن آئے تھے۔ نوٹ کر، اس رات میں صاحب قرآن نہیں آئے،
अगर तूने यही डेट रखी है तो वो सुबह थी, रात का टाइम नहीं था। अपने फतवे पे नजर सानी फरमा, वगरना ये चीजें अगर फैलना शुरू हो गई तो तुझे बहुत दूर तक ले जाएंगी। जनाब अगर ये चीज समझ आ गई है तो मेरे साथ जरा आगे बढ़ और बात कर कि ईद की रात तूने अफजल तरीन कह दी। अगली बात 12वां सवाल, ईद उल फितर पे मीठा मसनून, ईद उल अजहा पे नमकीन मसनून। जनाब ईद मिलाद का भी जरा फ्लेवर दे दीजिए, कैसा रहेगा, दलील पेश कर दीजिए। 13वां सवाल, नालैन पे नबी के नाम से इस्तिकबाल करते हो, तेरे किसी मुर्शद का पता दे, मैं उसके जूते पे उसके नाम लिखवा के शहर लाहौर में लगवा के इंतजामिया को बुलवा के मैं इस्तिकबाल करता हूं, करने की इजाजत होगी या फिर वो गुस्ताखी शुमार होगी। 14वां सवाल, जनाबे अली ने तो रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के नाम पे काफिरों के मुतालबे पे नाम पे सिर्फ कलम से लकीर नहीं फेरी थी। अरे जालिम, तूने पैगंबर के नाम पे, ईद के नाम पे केक बना करके छुरियां पकड़ करके मेरे पैगंबर के नाम पे चला दी। कब कोई समोटो एक्शन होगा और तेरे खिलाफ तौहीन रिसालत का केस होगा? क्यों? तू अपना है ना, इसलिए तुझे पूछने वाला कोई नहीं, चूंकि तेरा मिजाज अपना है, कभी तेरे पे भी गुस्ताखी का फतवा लगेगा। 15वां सवाल, नालैन पे आयात गुस्ताखी है कि नहीं। 16वां सवाल, नालैन पे अस्माउल हुस्ना गुस्ताखी है कि नहीं। 17वां सवाल, नबूवत ने ये ईद पहली दफा कब पड़ी थी? मेरा हक बनता है मैं पूछूं। मेरे पैगंबर ने ईद पढ़ के दिखाई, आर्डर दिए, जरा लेके आ। इसी तरह पूछते हो हमसे कि जनाब पैगंबर की नमाज में आखिरी नमाज में रफुल यदैन दिखा दो, तो मुझे अपने पैगंबर के आखिरी साल की रेहलत वाले साल जो पैदाइश का दिन था उसमें पैगंबर ने ईद की तैयारी क्या करी थी, मेरे नबी के 12 हुजरों में तैयारी कैसी थी, जरा इसका कोई हवाला हो जाए तो मजा दोबाला हो जाए। 19वां सवाल, आपके चचा अब्बास ने रदी अल्लाह ताला अन्हो, चचा हमजा ने और फूफी सुफैया ने, आप पैगंबर की असल ने, आपके बड़ों और वडेरों ने ये ईद कितनी दफा जिंदगी में मनाई। इसी तरह 20वां सवाल, अज़वाज रसूल में से सैयदा खदीजा, सैयदा सौदा, आयशा, हफ्सा, उम्मे सलमा, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते जहश, सैयदा जुवैरिया, उम्मे हबीबा और सैयदा सुफैया, मैमूना, मारिया, किब्तिया, इन्होंने अपनी जिंदगियों में कितनी बार ये ईद मनाई? मुझे हवाला चाहिए। मना जरूर मना, लेकिन जरा कभी देख आईने में। 21वां सवाल, बनाते रसूल सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, उम्मे कुलसूम ने ये ईद कितनी बार मनाई और कब कब कहां कहां कैसे मनाई? मेरे पैगंबर की बेटी फातिमा से बढ़ के तो तुझे प्यार नहीं है, उस बेटी ने ये ईद कैसे मनाई? और 23वां सवाल, नवासु हसनैन करीमैन ने, अली इब्न अबिल आस ने, उमामा बिनते अबिल आस ने, ज़ैनब बिनते अली ने, उम्मे कुलसूम बिनते अली ने, नवासा होने के नाते मेरे पैगंबर की अपने नाना की ये दी हुई ईद कैसे और कब और कहां मनाई? 24वां सवाल, ददियालो ननियालो ससुराल से तुझे ज्यादा प्यार है या मेरे पैगंबर के इन रिश्तेदारों को प्यार था? उन्होंने पहली बार ये ईद मनाई तो कब मनाई? 25वां सवाल, खुलफाए अरबा को ले ले, जनाब अबू बकर सिद्दीक का 2.5 साल दौर, जनाबे उमर का 10 साल दौर, जनाबे उस्मान का 12 साल दौर और जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन उनका जो है वो 4 साल दौर, इनको ला करके जरा मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ईद का नमाज, इसका जश्न, इसका त्योहार और इसका जो है वो अंदाज जरा पढ़ना और बता जरा इन सहाबा से। 26वां सवाल, अशरा मुबशरा ने ईद मनाई तो कैसे? 27वां सवाल, 1.25 लाख सहाबा और सहाबियात ने ये ईद मनाई या उनको इल्म नहीं था? 28वां सवाल, ताबईन इज़ाम में से किसी एक ताबई का नाम ले जिन्होंने सबसे पहले ये ईद पढ़ी, पढ़ाई, इमामत करवाई, जुलूस की क़ियादत करवाई। और इसी तरह 29वां सवाल, तबा ताबईन में कोई नाम दे। 30वां सवाल, फुक़हाए अरबा, इमाम अबू हनीफा से, मालिक और शाफी से, इमाम अहमद इब्न हंबल से जरा पता करवा दे कि कूफा के अंदर जनाब इमाम अबू हनीफा ने, बगदाद के अंदर इमाम अहमद इब्न हंबल ने और इमाम मालिक ने मदीना में, इमाम शाफी ने मिस्र में कहीं इस जुलूस का क़ियादत करके 12 की सुबह को जो है इस जश्न को बतौर ईद मनाया है? आइम्मा अरबा का कोई हवाला ले आ हजरात। 31वां सवाल, मुहद्दिसीन की लंबी लिस्ट है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा, दीगर मुहद्दिसीन, उनकी जिंदगियों के अंदर कोई ऐसे हवाले ले आ कि जिसको आज तू दीन बना के मुसल्लत, ईद बना के मुसल्लत और बगैर दलील के इसको जो है वो कौम के लिए एक दीन का हिस्सा बना रहा है। जा जरा आगे चल,
32वां सवाल देख, मारूफ औलिया उल्लाह से, कुतुब अबदाल से, पीर अब्दुल कादर जिलानी से, माई राबिया बसरी से, अली हजवेरी से, पीर फरीद से, लाल शहबाज से, इनकी जिंदगियों में इस तरह के जुलूस, उनकी क़ियादत और ये ईद और उसके तरीके, जरा यही ले आ। 33वां सवाल कुतुब तफसीर में इस ईद का नाम जरा दिखा दे। 34वां सवाल कुतुब हदीस में ईदैन के चैप्टर तो आए, लेकिन इस ईद को किस नाम से जिक्र किया गया? क्या मुहद्दिसीन भूल गए? रबीउल अव्वल का जुलूस क्यों नहीं निकालते? हुजूर का मिलाद क्यों नहीं मनाते? हुजूर के मिलाद पे रैलियां क्यों नहीं लगाते और झंडियां क्यों नहीं लगाते? चरागा क्यों नहीं करते? जुलूस में घोड़े और ऊंट और ताजिया और तबूत और पता नहीं किस किस चीज की शबी नहीं बनाते। मैंने कहा देवबंदी में और दूसरों में यही तो फर्क है, हम सिर्फ वो मसला मानते हैं जिस मसले पर या इमामुल अंबिया की मोहर हो या कम से कम सहाबा की मोहर हो। हमारा ले गहरे नत्थू खैरे अल्ले तल्ले के बाद मानने के लिए पाबंद नहीं। मैंने कहा मुझे दिखा हुजूर के दौर से लेकर आज से 100 साल पहले तक, मुझे पूरी तारीख में कहीं जुलूस दिखा दे, मैं तेरा अकीदा भी कबूल करूंगा, आज के बाद जुलूस भी निकालूंगा। मैंने तो तारीख का मुताला किया, मैंने तो हिस्ट्री की वर्करदानी की कि पैगंबर के दौर में 23 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हुजूर अकरम के बाद सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत आया, हुजूर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। फिर सिद्दीक अकबर की वफात के बाद फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, फारूक आजम के दौरे खिलाफत में 10 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में 12 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। अली अल मुर्तजा के दौरे खिलाफत में 5 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। हजरत हसन के दौरे खिलाफत में 1 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में तकरीबन 19 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत में 2 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम आजम अबू हनीफा के दौरे इमामत में सने बलूगत के बाद 45 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम मालिक के दौर में 53 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम शाफी के दौर में 61 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। अहमद इब्न हंबल के दौर में 53 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। ऐसे भी आगे चल, इमाम बुखारी के दौर में 40 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम मुस्लिम के दौर में 60 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम अबू दाऊद के दौर में 63 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इमाम नसाई के दौर में 71 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। इससे भी आगे चल, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में 65 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दौरे विलायत में 72 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। दाता गंज बख्श हजवेरी के दौरे विलायत में 63 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन वाले की विलायत के दौर में 70 मरतबा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दौरे विलायत में 55 दफा रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं निकला। ये जुलूस न नबुव्वत के दौर में, न सदाकत के दौर में, न सहाबा के दौर में, न ताबेईन के दौर में, न इम्मा मुज्तहिदीन अकाबरीन, न औलिया के दौर में। अगर उसमें होता मैं अपना अकीदा बनाता, जब नबुव्वत में नहीं, सहाबा के दौर में नहीं, इमामों के दौर में नहीं, औलिया के दौर में नहीं, तो ये तेरे पेट का धंधा तो हो सकता है, नबुव्वत के इश्क का समंदर नहीं हो सकता। जिस नबी ने हमें चप्पल पहनने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें बालों में कंघी करने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें कपड़े पहनने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें सोने का तरीका बताया हो, अरे जिस नबी ने हमें बैतुल खला में जाने और आने का तरीका बताया हो, उसने अपने नाम पर खुशी मनाने का तरीका लोगों को नहीं बताया? क्या नबी हमें अपने पैदाइश के दिन पर खुशी मनाने का तरीका बताना भूल गए थे? नऊज़ु बिल्लाह। कि इमाम अबू हनीफा को मानते हो, अगर माई का दूध पिया है माँ का, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी से एक जुलूस, एक चरागा, एक झंडा और एक जश्न साबित कर दो, मेरी सजा मौत है। इमाम अबू हनीफा को मानते हो? जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मानता है
وہ ایک جلوس امام ابو حنیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے نکال کے دے دے، رب کبریا کی قسم ہے میرا خون معاف ہے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، مکھی کے پر کے برابر نہیں ہوں، کیوں دین کے نام پہ امت کو جہنم میں ڈالنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔